third lecture on ITF. We were doing question number 5th. We have the function tan inverse 1 plus x square का square root minus 1 upon x. This function we have to express in the simplest form. Let us see. इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है हमने। मेथड ये होगा कि हम ये सोचेंगे कि x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करें कि यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाए। x की जगह पर हम साइन कॉस टेन कॉस एक्स या कॉट की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करें सो दैट एक फॉर्मूला बन जाए हमारे पास। यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया था 11th क्लास में, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, and thus we put x as tan theta, put x equal to tan theta. It implies theta is equal to tan inverse x, and thus it becomes tan inverse 1 plus x square means tan square theta square root minus 1 upon x, x means tan theta. This will be equal to tan inverse 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. स्क्वायर से कटेगा स्क्वायर रूट sec थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। बाहर हमारे पास है tan इनवर्स, हम अंदर भी चाहेंगे tan आ जाए ताकि हम tan से काट देंगे tan इनवर्स को। तो sin और tan हम इनको लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ sin एंड cos। हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको थोड़ा और। वी राइट tan इनवर्स sec को हमने लिखा 1 upon cos थीटा minus 1 tan theta means sin theta divided by cos theta. This will be equal to tan inverse 1 minus cos theta divided by cos theta divided by sin theta upon cos theta equal to tan inverse cos से cos, we are left with 1 minus cos theta divided by sin theta. Now this will be equal to tan inverse, we know 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta by 2. Sin theta is equal to 2 sin theta by 2 cos theta by 2. Formula from 11th class. 2 से कैंसिल 2, एक साइन से गया साइन, we get tan inverse sin upon cos tan theta by 2. tan inverse से गया tan half theta is equal to half theta is equal to tan inverse x. ये हमारा आंसर आ चुका है। इस फंक्शन की ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। यही क्वेश्चन आगे जाके अब डिफरेंशिएशन के अंदर आएगा, फिर इंटीग्रेशन के अंदर आएगा। ये डिफरेंशिएशन में इस तरीके से आएगा, हमसे कहा जाएगा इसको डिफरेंशिएट करो, बट इसको डिफरेंशिएट करना इज टफ। तो हम इसको पहले चेंज करेंगे इन सिंपलेस्ट फॉर्म बिकॉज इसका डेरिवेटिव निकालना इज कंपैरेटिवली इजी एज कंपेयर टू दिस फंक्शन। तो ये चीजें आगे जाके भी आने वाली है इन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आल्सो। कोई हमसे कहे इसका इंटीग्रेशन निकालिए, इसका इंटीग्रेशन निकालना टफ,
हम इसको चेंज करेंगे इसके अंदर, एंड टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन इज एन इजी टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। We have to express this function in the simplest form. Again, same method, that is substitution method. हमें सोचना ये होगा कि हम x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करें so that यहाँ डिनोमिनेटर में कोई फॉर्मूला बन जाए। हमने स्टडी किया था sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan square theta. We also know cosec square theta minus 1 is equal to cot square theta. We can use any one formula here. Okay. We use this formula. So thus put x equal to cosec theta. We write put x equal to cosec theta. It implies theta is equal to cosec inverse x. It becomes tan inverse 1 upon x square means cosec square theta minus 1 is square root is equal to tan inverse 1 upon, it is equal to cot square theta square root tan inverse 1 upon cot theta is equal to tan inverse 1 upon cot means tan theta, tan inverse से tan theta and theta is equal to cosec inverse x. It is our answer. तो इस फंक्शन की ये सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास आ चुकी है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कह दिया है कि ये क्वेश्चन हमारे पास आगे जाके डिफरेंशिएशन में भी आएंगे और इंटीग्रेशन के अंदर भी आएंगे। इनका डिफरेंशिएशन निकालना होगा टफ, तो हम इनको चेंज क्या करेंगे इन फॉर्म्स के अंदर एंड देन डिफरेंशिएट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन नंबर, tan inverse 1 minus cos x upon 1 plus cos x square root of this. Simplest form. बाहर tan इनवर्स है, हम अंदर भी चाहेंगे tan ही आ जाए ताकि हम tan इनवर्स से काट देंगे tan को। 1 minus cos x 1 plus cos x. Tan inverse, we know that 1 minus cos x equal to 2 sin square x upon 2. Formula from 11th class trigonometry, 1 plus cos x is equal to 2 cos square x upon 2 and square root of this. From here tan inverse to we got 2 sin square upon cos square, it becomes tan square x by 2. इसको से काटेंगे square root, we get tan x by 2, tan x by 2, tan inverse से गया tan, we have x upon 2. It is our answer. तो इस फंक्शन की ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है। मतलब देखें कि x अपॉन 2 को हमने इतना बड़ा करके लिखा हुआ है, ये खाली x अपॉन 2 लिखा हुआ है। नेक्स्ट, नंबर 8,
tan inverse cos x minus sin x divided by cos x plus sin x. सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है इसको। कैसे? ध्यान से सुनिए एक बारी। जहां पर भी cos माइनस साइन, cos प्लस साइन आ जाए, चाहे वो डिफरेंशिएशन में आ जाए, चाहे वो इंटीग्रेशन के अंदर आ जाए, जहां पर भी ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई, हम वहां पर सॉल्व करेंगे बाई दिस मेथड, ऊपर नीचे डिवाइड बाई cos x, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर divide by cos x. We write on dividing numerator and denominator, on dividing numerator and denominator by cos x of this expression. We get tan inverse cos upon cos 1 minus sin upon cos tan x, cos upon cos 1 sin upon cos tan x. 11th क्लास के अंदर हमने स्टडी किया था tan pi by 4 minus x. We know that tan a minus b is equal to tan a minus tan b divided by 1 plus tan a into tan b. This will be equal to tan pi by 4, इसका वैल्यू होता है 1, 1 minus tan x divided by 1 plus tan pi by 4, 1 into tan x means 1 minus tan x upon 1 plus tan x is equal to tan pi by 4 minus x, and thus we write it as tan inverse, और ये किसके बराबर आया है? इसके, ये चीज यानी कि ये चीज इक्वल इसके है, तो इसकी जगह पर हम लिख रहे हैं tan pi by 4 minus x. tan inverse से गया 10, we are left with pi by 4 minus x. ये सिंपल फॉर्म है इस फंक्शन की। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9. इट इज tan inverse x upon a square minus x square का square root. We have to write this function in the simplest form. Here in the denominator we have a square minus x square. What substitution is to be done for x so that we may write this function in the simplest form? Note this. Expression substitution अगर यहां पर आपके पास expression is of the type a square minus x square, then we substitute x equal to a sin theta, and if here we have an expression of the type a square plus x square, then we substitute x equal to a tan theta, and if we have an expression of the type x square minus a square, then we put x equal to a sec theta. इन सब्स्टिट्यूशन से
we get answers. कैसे? Let us see here. ये आपको याद करना है. अगर ये एक्सप्रेशंस है तो हम करेंगे ये सब्स्टिट्यूशंस. ये एक्सप्रेशंस, ये सब्स्टिट्यूशंस आर for differentiation also and for integration also. डिफरेंशिएशन के अंदर भी और इंटीग्रेशन के अंदर भी जहां पर आपके पास आएंगी ये एक्सप्रेशंस, we substitute these values. Let us solve it. Here we have a square minus x square. If we have a square minus x square, then we put x equal to a sec theta. Put x equal to a sec theta, a sin theta. It implies sin theta is equal to x upon a. It implies theta is equal to sin inverse x upon a. Now we have, it becomes tan inverse x. For x we write a sin theta divided by a square minus x square. X square means a square sin square theta, and square root of this will be equal to tan inverse a sin theta divided by a square common 1 minus sin square theta, square root of this. It is equal to tan inverse a sin theta divided by 1 minus sin square theta is equal to cos square theta. We have a square cos square theta, square root of which will be a cos theta. A cos theta a से cancel a, sin upon cos, tan थीटा, tan इनवर्स जाएगा tan थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन. ये सिंपल फॉर्म आपके पास आ गई है इस फंक्शन की. तो इस फंक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म ये है. नेक्स्ट, tenth number, it is tan inverse 3a square x minus x cube divided by a cube minus 3ax square. सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इसे हमें. हमारे पास एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में था tan 3 minus tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta is equal to tan 3 theta. हम चाहते हैं कि ये चीज यहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए, बट यहां पर हमारे पास है 1 यहां, और यहां हमारे पास है a क्यूब. हम चाहते हैं कि a क्यूब की जगह यहां पर भी 1 आ जाए. तो यहां पर 1 लेकर आने के लिए ऊपर नीचे डिवाइड बाई a क्यूब, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई a क्यूब. ऊपर नीचे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by a cube. We get tan inverse, see carefully, 3a square x upon a cube. A square से cancel a square, and we are left with 3x upon a minus x cube divided by a cube. We have x upon a whole cube divided by a cube upon a cube 1 minus 3ax square upon a cube.
A से cancel A. We have A square. 3x square upon A square. It is 3x upon A whole square. And now it is obvious that we should put x upon A as tan theta, right? Put x upon A is equal to tan theta. From here we have theta is equal to tan inverse x upon A, and thus this expression becomes now tan inverse 3x upon A is equal to tan theta minus x upon A, tan cube theta divided by 1 minus 3x upon A square means tan square theta. This will be equal to tan inverse, and this expression is equal to tan 3 theta. tan inverse से क्या tan 3 theta. 3 थीटा का वैल्यू है, थीटा हमारा है tan इनवर्स x अपॉन ए. ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया हमारा. तो इस फंक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म है 3 tan इनवर्स x अपॉन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, we have to find the values of each of the following. number, find the value of tan inverse 2 cos 2 sin inverse half we have to find its value. ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या किया जाता है, हम पहले देखेंगे उस फंक्शन को जो फंक्शन इनर मोस्ट ब्रैकेट में है, जो फंक्शन सबसे अंदर है, हम पहले सॉल्व करेंगे उसको. tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ. sin इनवर्स हाफ इसकी वैल्यू वो एंगल होगी जिस एंगल का साइन हाफ होता है, एंड इट इज 30 डिग्री पाई अपॉन 6. तो sin inverse half is pi upon 6. This will be equal to tan inverse 2 cos 3 pi upon 3. This will be equal to tan inverse 2 cos 60, it is half, is equal to tan inverse 2 1, and it is equal to pi upon 4. इसकी वैल्यू इज pi upon 4. तो एकदम आसान क्वेश्चन था, ये हो चुका है. नेक्स्ट, नंबर 12. number, find the value of cot tan inverse A plus cot inverse A. Very easy question, very easy question. Cot, we know that it is equal to pi upon 2 from inverse trigonometry, and cot pi by 2 0. खत्म. नेक्स्ट 13 नंबर, tan हाफ sin इनवर्स 2x upon 1 plus x square plus cos इनवर्स 1 minus y square upon 1 plus y square. Find its value. Okay, let us see.
In our first lecture on ITF, we have seen that sine inverse 2x upon 1 plus x square is equal to 2 tan inverse x. We also know that cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square is equal to 2 tan inverse y. These proofs are in our first lecture on IDF. You can check in first lecture on IDF. So this function becomes tan half, it is equal to 2 tan inverse x plus it is equal to 2 tan inverse y. बट अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो वहां पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, एंड देन this step. But we have done already that it is equal to this and it is equal to this in our first lecture on chapter ITF. Next step, tan half, 2 common, tan inverse x plus tan inverse y. This will be equal to tan 2 से cancel to tan inverse x plus tan inverse y, it is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus x into y. It is equal to tan से गया tan inverse, and this is our final answer. तो thus इस function इसकी वैल्यू होगी x plus y upon 1 minus x into y. Next question. If 40 number if sine inverse half 1 by 5 plus cos inverse x is equal to 1, then find the value of x. We have to find the value of x from this equation. Okay, let us see. We write sine inverse 1 upon 5 plus cos inverse x is equal to, साइन को वहां लेके जा रहे हैं, वहां जाके साइन बन जाएगा साइन इनवर्स 1, और वी राइट साइन इनवर्स 1 upon 5 plus cos inverse x is equal to, we know that sin inverse 1 is equal to pi by 2. हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ही कि sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi upon 2. यहां से we can say cos inverse x is equal to pi by 2 minus sin inverse x. ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं, लगाइए तो इट बिकम्स साइन cos इनवर्स को तो हमने यही cos इनवर्स x is equal to pi by 2 minus sin inverse 1 upon 5 is equal to, or we can say cos inverse x is equal to pi by 2 minus sin inverse x is equal to cos inverse x, यानी कि ये और ये सेम, तो thus pi by 2 minus sin inverse x is equal to cos inverse x. x का वैल्यू यहाँ पर है 1/5, cos inverse से गया cos inverse, thus x का वैल्यू 1/5. So easy. Next,
if tan inverse x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2 is equal to pi upon 4, find the value of x। इस इक्वेशन से हमको निकालना है x का वैल्यू। ओके, लेट अस सी। वी नो दैट tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus x into y। वी नो tan inverse, और आप कह लीजिए tan inverse a plus tan inverse b is equal to tan inverse a plus b upon 1 minus a into b। We apply this formula here, लगाइए ये a और ये b, तो it becomes tan inverse a plus b, यानी x minus 1 upon x minus 2 plus x plus 1 upon x plus 2 a plus b upon 1 minus a into b। a हमारा ये रहा, into b है x plus 1 upon x plus 2 is equal to pi by 4। एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं इसको भी। यहां पर हमने यहां पर एलसीएम लिया तो वी गेट x minus 2 x plus 2, in numerator we have x minus 1 into x plus 2 plus x plus 1 into x minus 2 divided by एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा x minus 2 into x plus 2, in numerator we have x minus 2 x plus 2 minus x minus 1 into x plus 1 is equal to tan इनवर्स को वहां ले गए, tan इनवर्स वहां जाके बन जाएगा tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1, मीन्स इट इज इक्वल टू 1। ये 1 कैसे आ गया, फिर सुन लीजिए, tan इनवर्स को वहां ले गए, tan इनवर्स वहां जाके बनेगा tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 उसका वैल्यू होता है 1। अच्छा, इससे काटिए इसको, सिंप्लीफाई x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स प्लस एक्स बचेगा माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस का x बचेगा और ये माइनस का 2 डिवाइडेड बाई a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस का साइन बाहर है, अंदर के साइन चेंज होंगे, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट माइनस माइनस प्लस और 1, एंड इट इज इक्वल टू 1। x से कैंसिल x, ऊपर 2x स्क्वायर माइनस 4, नीचे 4 तो रहेगा ही, x स्क्वायर से कैंसिल x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 1। और वी कैन से 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, और 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर इक्वल टू हाफ, एंड thus x का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। ये हमारा आंसर आ गया। बटे में भाई एक बार ध्यान में रखकर चलना है, यहाँ पर जब हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और जो निकालते हैं x की वैल्यू, उन x की वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर जाकर हम वेरीफाई करेंगे। हमारे पास x की दो वैल्यूज आ रही है, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 एंड माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। हो सकता है कि इन दोनों में से केवल एक ही वैल्यू सही हो या दोनों वैल्यू सही हो, बट
हम जब भी निकालेंगे x की वैल्यू फ्रॉम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो जितनी भी हमारे पास x की वैल्यू आती है उन सारी वैल्यूज को हमेशा ओरिजिनल इक्वेशन में रखकर वेरीफाई किया जाता है। क्या रीजन है वेरीफाई करने का? उसका रीजन ये है, भाई एक बात मुझे बताइए आप, हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b, ये फॉर्मूला तो हम लगाते हैं तब जब a इंटू b का वैल्यू होता है 1 से कम। ये फॉर्मूला हम लगाते हैं उसी कंडीशन में लगाते हैं जब a इंटू b का वैल्यू होता है 1 से कम। बट इस कंडीशन का हमने यहाँ पर कोई ध्यान नहीं रखा है, तो इसलिए जो भी वैल्यूज हमारे पास आएंगी उनको वेरीफाई किया जाएगा कि क्या x की इन वैल्यूज के लिए a इंटू बी का वैल्यू आ रहा है 1 से कम। x की जिस वैल्यू के लिए a इंटू बी का वैल्यू आएगा 1 से कम वही वैल्यू सही होगी, या कह लो x की जिस वैल्यू के लिए LHS बराबर होगा RHS के, वो हमारा आंसर माना जाएगा। तो चलिए हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं इन वैल्यूज को ओरिजिनल इक्वेशन में डालकर। बट एक चीज देखिए, मैं अगर x की वैल्यू को ले लूं सपोज 1/√2 और यहां डाल दूं LHS में, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ लग रहा है मुझे। वेरिफिकेशन करने का इसका फिर हमारे पास एक तरीका और भी है। वो कौन सा तरीका है? देखो, हम ये फॉर्मूला कब लगाते हैं जब x इंटू वाई का वैल्यू होता है 1 से कम। तो यहां से वेरीफाई कर लो कि ये x और ये y, x इंटू वाई निकालो, x इंटू वाई, और ये हम चाहते होना चाहिए 1 से कम। हम यहां से चेक करेंगे अपना आंसर, तो x माइनस 1 x माइनस ये x स्क्वायर माइनस 1 और ये x स्क्वायर माइनस 4, 1 को यहां ले लो, माइनस 1 लेस देन 0। सिंप्लीफाई करेंगे इसको थोड़ा सा, तो x स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम लेंगे माइनस x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। x स्क्वायर से x स्क्वायर तो 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। तो हमारी x की जो वैल्यू इस इनइक्वालिटी को ट्रू होल्ड्स करेगी वही सही होगी। तो ये जो x की वैल्यू आ रही है, आप इन x की वैल्यू को LHS में रख के देखो, अगर वैल्यू आती है 0 से कम तो वो x की वैल्यू ठीक है। देखो, हम चाहते थे x की वो वैल्यू सही मानी जाए जिस वैल्यू का स्क्वायर जब मैं यहां लगाऊं तो ये वैल्यू आनी चाहिए 0 से कम। जितने भी यहां पर हमारे पास x की वैल्यू आई है, हम उनमें से उन्हीं वैल्यू को सही मानेंगे जिन वैल्यू का स्क्वायर अगर यहां रखा जाए तो ये LHS होना चाहिए 0 से कम। देखते हैं, चलो हमारी x स्क्वायर की वैल्यू थी 1/2, तो मैं x स्क्वायर की जगह लगा रहा हूं 1/2, तो वी गेट 3 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 4। सिंप्लीफाई 3 1 माइनस 16 अपॉन 4, 4 ऊपर आ गया। यानी कि देखो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 12 अपॉन माइनस 15, और ये वैल्यू होती है 0 से छोटी। तो 10 जो हमारे पास x की वैल्यूज आई है, ये वैल्यू दोनों सही वैल्यू है। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 इज अवर आंसर। मैं आपको फिर बता दूं, अगर हमने एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व किया है तो जो हमारे पास x की वैल्यूज आ रही है उन वैल्यू को वेरीफाई किया जाता है ओरिजिनल इक्वेशन में डालकर, अदरवाइज सेकंड मेथड है ये वाला। क्योंकि ये फॉर्मूला तो हम लगाते हैं तभी जब x इंटू वाई का वैल्यू होता है 1 से कम। तो ये x था, ये y था, हमने x इंटू वाई निकाला और उसको रखा 1 से कम। इसको सॉल्व किया हमने तो हमारे पास ये आ गया, ये। तो जितनी हमारे पास x की वैल्यू आई है, हम उन x की वैल्यू को रख के देखेंगे LHS में। अगर ये LHS आता है 0 से कम
तो वो x की वैल्यू हमारी सही है। और अगर x की कोई ऐसी वैल्यू है जिस वैल्यू के लिए दिस इनइक्वालिटी इज नॉट सेटिस्फाइड, तो x की उस वैल्यू को छोड़ दिया जाएगा, वो वैल्यू नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3। 16 नंबर ये मेरी निकालना है। देखिए इसको जरा एक बार, भाई मैंने कहा था आप लोगों से कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता तो जरूर है, बट ये केवल उसी केस में होता है व्हेन एंगल थीटा बिलोंग्स -90 से लेकर 90, और यहाँ जो हमारा एंगल है 2π/3 इट इज 120 डिग्री। 120 डिग्री 90 से बाहर चला गया, एंड thus इसकी जगह पर हम मतलब इसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला अभी नहीं लगा सकते। हम पहले ये जो एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है इस एंगल को लेकर आएंगे इस रेंज के अंदर, एंड देन अप्लाई दिस फॉर्मूला। कैसे देखते हैं इसको जरा। साइन इनवर्स साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री को हमने लिखा 180 माइनस 60, इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा, इट इज इक्वल टू साइन थीटा π/3। एंड नाउ अभी जो एंगल हमारा है π/3, ये एंगल इस रेंज के अंदर आ चुका है, एंड thus we use this formula sin इनवर्स sin थीटा बराबर थीटा, तो sin इनवर्स sin थीटा बराबर थीटा दैट इज π/3। तो इसकी वैल्यू π/3 होगी, ना कि 2π/3। नेक्स्ट 17 नंबर we have to find the value of tan inverse tan 3π/4। I have told you already that we have tan inverse tan theta is equal to theta, but only when theta lies in the interval -π/2 π/2. It is an open interval. But here we see that theta 3π/4 it is more than π/2, and thus we can't use this formula here. What we have to do? We have expressed this angle in this range. How? Let us see. We write it as tan inverse tan 135 degree. We know tan 135 degree is tan 180 minus 45 is equal to tan inverse tan pi minus theta is equal to minus tan theta tan π/4. It is equal to tan inverse minus tan π/4 is equal to 1. Tan inverse minus x is equal to minus tan inverse x. It is equal to minus tan inverse 1 is equal to π/4. This is our answer. So thus it is equal to minus π/4, and this angle is in this range. Next 18 number 18. Find the value of tan
साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2. Find this value. Okay. हम सोच सकते हैं मैं अगर साइन इनवर्स को, अगर मैं साइन इनवर्स की जगह ले आऊं टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स की जगह पे ले आऊं टेन इनवर्स, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बन जाएगा. Now the task is how we change sin inverse in terms of tan inverse and cot inverse also in terms of tan inverse. Let us see. We write sin inverse 3/5. We know that sin inverse 3/5 is an angle. Let us say this angle is theta, or we can write sin theta is equal to 3/5. Now we make a right triangle, angle theta here, and we know sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, that is 3 and it is 5. And thus base will be 4 from Pythagoras theorem. Now we know that tan theta किसके बराबर होगा? Perpendicular upon base. तो यहां से थीटा किसके बराबर हुआ? tan को वहां ले गए tan इनवर्स 3/4. बट थीटा किसके बराबर है? sin इनवर्स 3/5. Sin inverse 3/5 and it is equal to tan inverse 3/4. तो sin inverse 3/5 is equal to tan inverse 3/4. हमें आगे से ये सब निकालने की कोई जरूरत नहीं है. हम कैसे करेंगे? सिंपली हम करेंगे ऐसे. साइन इनवर्स राइट ट्रायंगल बनाएंगे. साइन होता है p/h, तो बेस हमारा 4 आ गया. बस इसकी जगह लिखेंगे tan इनवर्स. tan होता है p/b, 3/4 आ गया tan इनवर्स 3/4. तो आगे से हम डायरेक्ट निकालेंगे यहां से. तो ठीक है, आगे लिखिए इसको. तो ये हो गया tan, और ये हमारा आया था tan इनवर्स tan होता है p/b. राइट ट्रायंगल है ना हमारा ये वाला. ये हमारा 3 था, ये 5 था और ये 4 था. tan क्या होता है? p/b 3/4 प्लस cot इनवर्स. वी नो दैट अगर हम cot इनवर्स को लिख रहे हैं tan इनवर्स, तो cot इनवर्स के साथ में ये जो लिखा हुआ है 3/2, इसका भी यहां पर आएगा रेसिप्रोकल 2/3. ये हम पढ़ चुके हैं अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर. नाउ वी हैव tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. अप्लाई द फॉर्मूला. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y. दिस विल बी इक्वल टू tan से गया tan इनवर्स एलसीएम 12, 9 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 12, 12 माइनस 6, 12 से 12, 17/6 इज अवर आंसर. हो गया क्वेश्चन हमारा. नेक्स्ट 19 number 19. Find the value of cos inverse cos 7π/6. देखिएगा
we know that cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, लेकिन ये होता है तभी जब एंगल थीटा हमारा होता है 0 से पाई के बीच में, अदरवाइज नॉट। 7 पाई अपॉन 6 मीन 210 डिग्री, जो कि 180 से बाहर चला गया, बड़ा एंगल है 180 से। तो 10 हम इसका वैल्यू इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। कैसे करेंगे देखिए सर, cos इनवर्स cos 210 डिग्री, 210 डिग्री को लिखा 180 प्लस 30 पाई बाय 6, इट इज इक्वल टू cos इनवर्स, we know that cos pi plus theta is equal to minus of cos theta, minus cos theta, theta हमारा है pi by 6, this will be equal to cos inverse minus and cos 30 degree is root 3 by 2, root 3 upon 2, cos inverse minus x is equal to pi minus cos inverse x is equal to pi minus cos inverse root 3 by 2 होता है 30 डिग्री पाई अपॉन 6, 180 में से क्या 30 150, तो आंसर आएगा 5 पाई बाय 6, और ये एंगल इस रेंज के अंदर आ गया है, तो इट इज अवर आंसर। नेक्स्ट, ट्वेंटी नंबर, it is sin pi upon 3 minus sin inverse minus half, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या होगा? It can be written as sin pi by 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस 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 प्लस साइन इनवर्स एक्स, और एक्स है हाफ, साइन पाई अपॉन 3 प्लस साइन इनवर्स हाफ होता है पाई बाई 6 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 प्लस 30 90 डिग्री पाई अपॉन 2, और इसका वैल्यू होता है 1। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज 21 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू, एमसीक्यू है ये, we write it as tan इनवर्स √3 माइनस ब्रैकेट cot इनवर्स माइनस x होता है पाई माइनस cot इनवर्स x, tan इनवर्स √3 माइनस माइनस प्लस cot इनवर्स √3 माइनस पाई, दिस विल बी इक्वल टू, और ये किसके बराबर होता है पाई बाय 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो वी राइट हियर पाई बाय 2 माइनस पाई and it is equal to minus pi upon 2. This is all about exercise 2.2, and for exercise 2.3 we will do in our next lecture. इसको ध्यान से देखिए आज के लेक्चर को सभी, और कोई डिफिकल्टी अगर आपको है तो बताइए मुझे।